Okay, yeah. So what I will do, I will just create an example. Okay. See, सब विजुअल स्टूडियो यूज करना। ओके, मैं अभी बोल दे रहा हूँ सभी को, फॉर कोडिंग यूज विजुअल स्टूडियो। HTML5 डॉक डॉक टाइप से हमें पता चलता है कि HTML5 है। ओके, सी हियर अरुण, इफ आई जस्ट यूज इनपुट टैग, ओके, सो यूजर हो जो हमारा वो है ना रेड स्क्रीन, उसे पता नहीं चलेगा यहाँ पे किसका इनपुट है। बट इफ आई यूज लेबल टैग, ओके, एंड आई टाइप हियर नेम, so it will read this name and say there is an input field. Okay, got it? Yes. Yeah, so that's the reason we use it in checkboxes and all, no? Video Yeah, buttons also. yes, that's the Got reason. it. Okay, so that Thanks. also, yeah, that also we covered. Why we use script tag at the end of the HTML code, that also we covered. Manvi, you will I will share the recording so you can go through the recording. Okay, so you will Yeah, thank understand. Yeah, no problem. I hope you have read what is SEO, search engine optimization. So देखो, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए ना बहुत सारे थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है दैट दे कैन, मतलब इजीली यू कैन डू एसईओ। बट जो तुम्हारे हाथ में होते हैं एसईओ, वो होता है तुम्हारा मेटा टैग्स। ओके, दिस वन। एंड जो तुम्हारा बॉडी में H2 टैग, H1 टैग, तो ये सब चीजों पे भी आता है। वी विल गो इन टू दैट थिंग्स स्टेप बाय स्टेप, बट मेटा टैग्स के थ्रू भी होता है। आई शोड यू हाउ, तो वो भी हमने कवर कर लिया। व्हाट इज फेविकॉन, ये भी सबने पढ़ लिया। व्हाट इज फेविकॉन? यस नो, किसी को डाउट है इसमें? पढ़ लिया। एनीवन, एनी डाउट? किसी को कोई डाउट है तो बोलो, अभी अनम्यूट करो, बोलो। नो डाउट। ओके, okay, I'm hoping no one has having the doubt. So yeah, so I hope yeah, Manvi, do you have any doubt in HTML? Anything you want to ask? like I have to cover few of those last के topics that the entity symbols wale. So apart from that, I had one thing, the iframes one. Just a second. What was your doubt? Can you please repeat? The iframe one over there was this I think target for a link. So that I couldn't really understand. And what was the first doubt? I mean, the target one, like this, it says that an iframe can be used as a target frame for a link. The target attribute of the link must refer to the name attribute of the iframe. So, Okay. like, what exactly is this? Yeah, I will show you. Okay, just a minute. See, I used here iframe. This you can see. Okay, so how did I use? We'll look into that. सो बेसिकली ये जो दिख रहा है ना, ये बॉक्स, दिस codeworks.com, ये एक वेबसाइट है। ओके, देयर आई गिव दिस, ये मेरा एक कोड है जिससे किसी को भी अगर मेरा ये खुद का ये एक मतलब just if anyone wants to use my code, he need to import this line. Okay, he need to use this line. तो मुझे एक ऐसा स्पेशल व्यू में जो भी मेरा कोड वाला पार्ट है ना, मुझे एक ऐसे स्पेशल व्यू में दिखाना था। लाइक सी, यहाँ पे भी मेरा कोड था, सो आई वांटेड इन दिस वे। ओके, सो व्हाट आई डिड, दिस codeworks.com है, वहाँ पे मैं गया, वहाँ पे मैंने मेरा कोड डाल दिया, उसने मुझे ये एक बॉक्स बना के दिया और उसका मुझे उसने लिंक दिया। ओके, सो आई गॉट अ लिंक ऑफ दिस बॉक्स। व्हाट आई डिड हियर, नाउ सी व्हाट आई डिड, आई विल शो यू। Yeah. See, are you able to see this iframe tag? Yeah. Yeah. So I wanted that link view to come here. Okay. Just a minute. Code is too easy. Yeah, there are also here examples. So what I did, I used this iframe tag here. I gave the source as the link of that image, okay, that I got from that website.
जस्ट इतना ही किया और ये बाकी मैंने आईडी क्लास वगैरह लगा तो उससे थोड़ी स्टाइलिंग होता रही थी एंड आई एम एबल टू सी दिस व्यू हियर ओके। तो इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है द HTML iframe tag specifies the inline frame and inline frame is used to embed another document within the current HTML document. So this was my own HTML code और वहां पे वो जो ये व्यू है ना ये पूरा जो ब्लैक कलर बॉक्स दिस शेड्स एवरीथिंग ये सब उन्होंने मुझे बना के दिया। आई वांटेड दैट व्यू इन माय HTML document so I used it and this is an inline tag. I hope you know what is inline and block. Yes. Yeah, so Like, this is an can you inline. scroll down in that HTML iframes wala? Yeah, over there, that target thing at the bottom. Target. Yeah, scroll a little. Yeah, this one. Acha, the Like target this attribute of the link extra. must refer to the same name attribute of this name. Okay, this is my name, iframe A. Okay, iframe target for a link. An iframe can be used as a target frame for a link. Let's check it out. What is it? Like when I Okay, was basically clicking on what's it? Yeah, I got it. What is this? ये एक iframe बना के रखा है, okay? इसका सोर्स क्या है? ये एक HTML डॉक्यूमेंट है, उसका ये सोर्स है यहाँ पे डाला हुआ, ओके? सो इसने क्या बोला, अगर तुम्हें ये एक मेरा एंकर टैग है बेसिकली यहाँ पे, उसमें मैंने टारगेट डाल दिया है दिस, okay? So what does it mean? If someone clicks on this iframe, okay, this link will be called. That's it. और कुछ नहीं। Okay, Yeah. got it. वैसे ये नीड तुम्हें And आएगा नहीं कभी यूज। What you will be using when you will be using iframe, if you want some external thing you want to show, external website से कोई thing है जो तुम्हें यहाँ पे show करने है तुम्हारे web page में, okay? At that moment you will be using iframe, as in this example I showed you, okay? yeah, And what another? yeah, that absolute and relative URL that I couldn't really understand properly. Absolute, where it is? I think it was in the image It's an tag one. image SRC, I guess. Right. Yeah, I remember studying that one. Where? I'm unable to find it. Where? Absolute. Up. Yeah, and where did that go? I guess it was in the attributes one. Attributes. Yeah. Kindly scroll down. Yeah. Down. Yeah, this one. Absolute URL and relative URL. Just a bit up. Where it is? It was here only. You actually scrolled a lot. Yeah, just Okay, above. this Just a bit one. above. Yeah, got it. Yeah, this one. Yeah. This is the one, right? Madhvi, this one you are talking about? Yeah, this one, but I think like this one here was simple, but it was there in another article also. I think Where? for links or something. I think in links it was there. I'll just check and get back. Yeah, here there are again absolute URL and relative URL. Yeah, this one. I guess absolute matlab It's koi actually you are going for the another third party one, right? And relative means within your own web I page. I guess it's basically like going to an external link. Yeah, that only it's a third party link, an external And link. That's relative absolute. is basically like Within your own within same the website. same page. Yeah, that's it. Within the same page of your own website. Yeah. So that's the same in case of image also. Yeah. So it was actually the same, I guess. Yeah. Yeah, it's the same thing. Manvi, it's clear now? No, I mean like the link that we are specifying here, relative wale mein, that will be the link of our own site or like Yeah. how? See. Own site, and it should be on the same page actually. No, I will show it. You Just can a see minute. the Yeah, same just wait. folder, I guess. Yeah, I Yeah, guess. just wait. I will show her exactly. Yes, it should be from the same folder. Yeah, I will show the Yeah, architecture exactly. of the one of my project. Then she will understand it. See, this is one of my own website. Okay,
I will open it here. Okay, this is my own website. Okay, so now you can see ये जो images दिख रहे हैं ना तुम्हें, ये सारे के सारे ये मेरे asset folder में. See, those are the images from here only. So within the same website, I am using those images. तो हम इसे बोलेंगे क्या बोलेंगे इसे? We call it a relative URL. Okay, because it's within my own website, within my own folders. यहाँ से ही मैं ले रहा हूँ. But if ये images को मैंने कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट पे like Bitbucket या Bitbucket वहाँ पे मैंने images dump किए होते, I will get an URL from them. Okay, so those are the relative URLs, relative not absolute URLs. Yeah, got it now. Yeah, got it. These are relative. Relative means हमारे खुद के relative. Normal उसका meaning समझ लो, समझ जाएगा इसे. Relative और absolute. Okay, I hope it's clear now. Okay, any Yes. further doubt? Also, can I add a point to this? Yeah, sure. Go on. Yeah, so actually I read that you should not use that much of absolute because one is the copyright issue. Another thing it is that the link might change also. Yeah, It might not be available after a certain time also. So I guess the practice, it's better to have a practice of the relative one rather than absolute. So that's what I wanted to add. yeah, you will go. ये प्राय की reason है जितना खुद को समझ आने लगती है. You will build up the perfection at that moment. Okay. Okay. So I hope every doubt is clear now, right? I'm right or wrong? Or no? Manvi, any doubt you have? Because बाकी सबके doubts already clear हो चुके. बस तुम्हारा बचा है. Are you there, Manvi? Yes, no, I don't have any doubt. Okay. How many of you have completed the HTML project? I have completed, but some one or two lines are left. Okay. First thing, सबको common generalize बोल रहा हूँ. I didn't ask you anyone to use CSS. So, okay, so I'm not expecting you guys to use the CSS though in the form. Okay. Because you don't know the standard practice. अगर तुम्हें बस बनाना है, खिचड़ी करना है तो ही CSS यूज करो. अगर standard practice follow करके अच्छे से step by step करना है, तो जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसे करो. Okay. So don't use CSS right now. CSS कोई भी नहीं, यूज कर. CSS नहीं यूज किया तो उसमें ये स्टाइल नाम से ये इनलाइन ये करना पड़ रहा है. क्यों करना है? इनलाइन CSS यूज कर नहीं, रहा है. inline CSS use नहीं विड्थ कर. साइज ना, Let it हाइट be. और What विड्थ के लिए. Arun, what I told was alignment is not an issue for me. Okay, I just want you guys to know all those different tags and you know how to mix up the things और एक बना सकते हैं. उतना ही चाहिए था मुझे. We will add CSS to it. Don't worry. After 2 weeks, Okay, you guys. only we need the simple format only. Yeah, simple format only. After 2 weeks, I can assure you, अगर तुम अच्छे से करोगे तो तुम 2 weeks बाद CSS में एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाओगे. I guarantee you. Every one of you. इतनी चीजें आएगी ना जो कॉलेज में I hope 99% बच्चों को आती नहीं है अभी भी. वो चीजें तुम सबको आने वाली. CSS. Just stay with it. जो मैं बोल रहा हूँ वो flow by flow करो. You will do it. Okay, so I'm hoping Prajwal, Manvi, Shreya, तुम्हारा भी हो चुका होगा HTML का code. Okay, I'm hoping. Okay, so should we Yeah, start but with the I'm doing that TOC. I haven't completed it. Yeah, I'm by tomorrow. By tomorrow, I want everyone to complete it. Okay. Oh, okay. Yeah, by tomorrow it will be By done. tomorrow it will do. Okay. See, and everyone should have the GitHub account from now onwards because everything, every POC that you do will be on GitHub, and we will follow the good practices to how to push code. What are the steps? Okay. So I'm sharing my screen again. I want the whiteboard actually right now. Yeah. Are you able to see the whiteboard, everyone? Yep. गिटहब सबने यूज किया आज तक कभी कि नहीं यूज किया? जो नहीं यूज किया वो बता दो एक बार मुझे. हमने कभी यूज नहीं किया. कितने जाने? अगर झूठ बोलोगे ना तो नहीं समझेगा जो मैं अभी बताने वाला. मैंने बहुत थोड़ा सा यूज किया है, बहुत कम. ओके, सबने? बाकी जन Yeah, बोलो, yes, खुद ओके बोल just a दो. bit. किया है normally. Yeah, even I have put few of those things, but not like I'm not a professional or Yeah, something. but you know. I don't know in detail like Okay, how okay, to, okay, you no know, problem. fork and all. I've कोई heard about गरज नहीं है. fork, कोई गरज नहीं है but I the fork haven't work. anything like that.
we will do basics only, not too high in depth. I don't want any one of you to be a master in Git. जितना required है उतना आना चाहिए, वही important है. Okay. I'm just creating a repo. इतना सबको पता है. Always add a readme file. Yes. This is one of the standard practice for every project. I want you guys to have a readme file जिसमें तुम तुम्हारा project जो होगा बस बता दोगे what is it, what you have used in it, that much only. Okay. Every project should have a readme file. Now onwards, make this habit. I'm just creating a repo. Okay. तो ये ब्रांच है, अभी मेरी एक मेन ब्रांच है यहाँ पे. ठीक है, रेपो बन चुका है. दिस इज माय मेन ब्रांच. अब ये मेन ब्रांच होता क्या है, ब्रांचेस होते क्या है, सोच रहे होंगे क्या है ब्रांचेस, क्या है करना है हमें इससे. लेट्स सी क्या होते हैं ब्रांचेस वगैरह. जस्ट अ मिनट. ओके, सी यहाँ पे मेरा आया मेन ब्रांच. ओके, सॉरी फॉर द हैंडराइटिंग, आई कांट डू एनीथिंग. ओके, दिस इज माय मेन ब्रांच. ओके, मेन ब्रांच को समझ लो, ये मेरा एक मेन, ये है मेरा स्टेम एंट्री का. ओके, ये समझ लो इसे. ठीक है, दिस इज माय स्टेम. ये मेरा एक ट्री है, समझ लो. मेन, जिसका मेन जो रूट से जुड़ा है, ये मेरा मेन है. नाउ श्रेया को ये मेन ब्रांच पे, एग्जांपल के लिए श्रेया को एक फीचर बोला है, श्रेया ये मेन ब्रांच पे एक फॉर्म बनाओ, गूगल फॉर्म बनाओ, नॉर्मल एक फॉर्म बनाओ. तो इसने, श्रेया ने क्या किया, एक ब्रांच बनाया. ठीक है, एक ब्रांच बनाया श्रेया ने. हम इसे ब्रांच 1 बोलते हैं. एंड श्रेया इज वर्किंग ऑन ब्रांच 2. फॉर्म बना रही है श्रेया पे. ओके, मानवी को मैंने बोला, मानवी एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाओ जो हमें लगेगी ये मेन ब्रांच के ऊपर. तो दैट इज माय ब्रांच 2. मैं एकदम लेम एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है. ठीक है, जस्ट टू अंडरस्टैंड. अब इसने, श्रेया ने ये काम कर लिया, तो श्रेया करेगी, ये कोड कर लिया श्रेया ने, उसका कोड ये ब्रांच के ऊपर डाल दिया, पूरा उसका कोड लोकल से. ठीक है, ये ब्रांच में उसका कोड आ गया. फिर मैं क्या करूंगा, मैं श्रेया का कोड पूरा चेक करूंगा. सब जन चेक करेंगे श्रेया का कोड. उसे अगर कुछ चेंजेस सबको दिख रहे हैं श्रेया के कोड में, तो उसे वो रिव्यू देंगे. वहां पे क्या देंगे, रिव्यू बोलते हैं उसे. वी विल सी इट. जस्ट आई एम शोइंग यू कि ये होता क्या है. हम रिव्यू देंगे, देन श्रेया विल मेक दोस चेंजेस एंड अगेन पुश दैट कोड टू दिस ब्रांच ओनली. ओके, देन जो एक, अगेन एवरीवन विल अप्रूव इट. जब अप्रूव कर दिया तो ये ब्रांच श्रेया की, ये मेन इसमें जाके मर्ज हो जाएगी. तो ये मेन के अंदर ब्रांच 1 का कोड आ जाएगा. ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको? Yep. ओके, Yes. बट मानवी वाज वर्किंग ऑन ब्रांच 2. मानवी के कोड में ब्रांच 1 का जो ये कोड मेन में आया है, उसका कुछ भी अभी तक मानवी को उससे कुछ लेना देना ही नहीं. मानवी ने भी अपना कोड किया, यहाँ डाल दिया, सबने चेक किया, अप्रूव किया, फिर ये वाला जो कोड था वो इसमें आ गया, सबका कोड. तो मेन में ऐसा चलता है. गॉट इट? ये मेरा मेन ट्री होगा, समझ लो. उसके ब्रांचेस है, उसके ऊपर हम इंडिविजुअली काम करते हैं, हमारा कोड उसमें पुश करते हैं, देन द टीम रिव्यूज इट. इफ एवरीथिंग लुक्स फाइन, फिर हम उसे इसमें मर्ज कर देते हैं. ओके, इतना याद आ, समझा सबको अच्छे से अभी तक? Yes. एवरीवन? ओके. सेकंड गुड प्रैक्टिस दैट यू मस्ट फॉलो. जब भी तुम अब फिर मैंने इसको बोला, प्रज्वल को बोला, प्रज्वल एक तू नई ब्रांच बना, उसमें एक नया फीचर ऐड करना है तुझे. तो प्रज्वल ने बोला ठीक है, मैं नया ब्रांच बनाता हूँ. तो प्रज्वल का पहला प्रैक्टिस क्या होना चाहिए, किसी का भी हो. ओके, ये ब्रांच 1 के लिए भी लगेगा, ब्रांच 2 के लिए भी लगेगा. प्रज्वल का पहला काम होगा टू पुल द कोड फ्रॉम द मेन ब्रांच. पहले पुल करेगा प्रज्वल, फिर एक न्यू ब्रांच बनाएगा, ब्रांच 3. ठीक है, प्रज्वल एक ब्रांच 3 बनाएगा, फिर उसमें कोड करेगा, उसको पुश करेगा ब्रांच 3 पे, फिर सब जन चेक करेंगे वो कोड, और फिर हम इसमें उसको मर्ज कर देंगे. क्लियर हुआ यहाँ तक सबको? Yep. ओके, दिस इज द स्टैंडर्ड. इवन हम इंडस्ट्री में हम कैसे काम करते हैं मैं बताता हूँ इंडस्ट्री में. ठीक है, ये मेरी मेन ब्रांच थी. ये एक मेन ब्रांच होती है जो प्रोडक्शन में जा रही होती है. ओके, जो अगर एक एग्जांपल हम लेते हैं फ्लिपकार्ट का जो हमें दिख रहा है ना वेबसाइट, वो पूरा मेन ब्रांच में. ठीक है, फिर एक नई ब्रांच होती है यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड डेव ब्रांच. ओके, दिस इज डेव ब्रांच, डेवलपमेंट वाली ब्रांच है. और अब हम क्या करते हैं, हम इससे बनाते हैं हमारी सब ब्रांचेस. लाइक मैंने ब्रांच 1 बोला था, वो ये रहेगी, ब्रांच 2, ब्रांच 3, यहाँ पे सब कोड करते हैं, डेव ब्रांच में डालते हैं. ठीक है, मर्ज होता है डेव में. फिर जो टीम लीड होता है या स्क्रम मास्टर होता है, वो डेव से मेन में मर्ज करता है, एंड देन इट गोज लाइव. दिस इज द स्टैंडर्ड प्रैक्टिस. तो इससे हमारा क्या हो रहा है,
अगर कोई यूजर ने कुछ यहाँ पे कोड गलत डाल दिया तो हम उसे रोल बैक करके हम सही कोड मिल सकता, बट उससे हमारा जो यूजर है, यूजर को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, बिकॉज वो तो मेन पे कर रहा है, मेन इज हैविंग द गुड कोड, स्टेबल कोड, तो मेन पे कोई भी फर्क नहीं गिरेगा, हम डेव ब्रांच पे ही काम करते हैं, ठीक है। अंदर डेव ब्रांच में मर्ज होने के बाद जब ये सब कुछ सही हो जाता है, स्प्रिंट रिलीज बोलते हैं बेसिकली हम। यू विल गाइस नो स्प्रिंट रिलीज, आई गेट मानवी और एंड प्रज्वल को पता होगा स्प्रिंट क्या होती है, आई होप ये कवर हो I गया know, होगा। yeah. यू आल्सो, या श्रेया आल्सो नो, या। सो वो स्प्रिंट रिलीज जब होता है तब वो प्रोडक्शन में मेन ब्रांच पे जाता है, फिर वो लाइव हो जाती है। सो नाउ व्हाट वी गाइस, एवरी वन ऑफ यू विल डू, वी हैव मेन फॉर एवरीवन, सबका मेन तो होता ही है। हम एक डेव ब्रांच बनाएंगे पहले, ठीक है, डेव ब्रांच बनाएंगे, डेव ब्रांच पे फिर हम हमारे फीचर के ब्रांच बनाएंगे, ठीक है। यू विल पुश योर कोड हियर, ओके, देन यू विल चेक इट वंस कि हाँ सब सही है कि नहीं है, खुद का खुद ही कोड चेक करोगे अभी, ठीक है। वो भी हम धीरे धीरे हम उसको भी लेवल अप करते जाएंगे, बट अभी खुद का ही, क्योंकि छोटा प्रोजेक्ट है, यू कैन डू इट ऑन योर ओन। फिर हम उसे मर्ज, फिर यू विल रेज द पीआर, ओके, दैट इज कॉल्ड पुल रिक्वेस्ट, ठीक है। जब उसे फिर तुम पुल रिक्वेस्ट को अप्रूव कर दोगे, देन यू विल मर्ज इट in the dev branch, and then you will share the link of dev branch with me. I will review it and I will approve it, then you need to merge it into the main branch. I hope सबको sequence समझ में आ गया होगा, complex लग रहा होगा, go through the recording again, you will understand it. Is it clear? This is how everyone in the industry codes. Okay, so now I will show you some few commands. ध्यान से देखना कैसे क्या कर रहा हूँ मैं, अभी रिकॉर्डिंग मिलेगी, रिकॉर्डिंग में जाके सब देखना, कमांड वापस वहां से मिल जाएगी, लगे तो मैं व्हाट्सएप पे एक बार सारे कमांड्स लिख के भेज दूंगा, एंड यू नीड टू फॉलो दोस थिंग्स, ओके। मेरी मेन ब्रांच थी ऑलरेडी यहाँ पे, मुझे एक ब्रांच बनानी थी, डेव ब्रांच बनानी है मुझे अभी यहाँ से। हाउ विल आई मेक डेव ब्रांच, ये तो मेरी मेन ब्रांच है, आई विल मेक अ डेव ब्रांच हियर। सी जैसे मैं देव लिखता हूँ यहाँ पे आ जाता है क्रिएट ब्रांच देव फ्रॉम मेन, सो मेन से एक देव ब्रांच बनेगी, आई विल क्लिक ऑन इट, ओके। सो नाउ आई हैव क्रिएटेड अ देव ब्रांच। व्हाट आई नीड टू डू राइट नाउ इज, फर्स्ट मुझे देव ब्रांच को मेरी डिफॉल्ट ब्रांच बनानी पड़ेगी। आई विल गो इन ब्रांचेस, आई विल जस्ट चेक इट हियर, आई विल क्लिक ऑन हियर इज no, not this one, I want to swap it, I will click here, I want my default branch to be dev, I will click on update, I understand, update the default, so my default branch is now dev branch, got it? सबको समझ में आया यहाँ पे? मेरी मेन Yes. ब्रांच कौन सी हो गई? Why do we have to make it default? Because Like, yeah, you will understand why soon, you will understand why. Let's go here, okay, just इतना समझ लो कि अभी हमने एक मेन था, मेन से हमने डेव बनाया, डेव को हमने डिफॉल्ट कर दिया, यहाँ तक समझ में आ गया सबको, आई होप। Now I will yep. open my VS Code, I will go on Git, I will open the new terminal, okay. I'm hoping सब अब से VS Code ही use करोगे तुम भी। This is the step, let it get really open. See, I want to clone this repo in my local, ठीक है, मुझे मेरे लोकल मशीन में ये repository है ना, इसे मुझे क्लोन करना है। I will click here, I will just copy it here, okay, HTTPS, I will copy it here. I will go here, I will write the command git clone this, enter. It will clone it. And I hope everyone, तुम सबको ना एक इशू आने वाला है जब तुम ये करोगे, तुम्हें वो लॉग इन करने बोलेगा यहाँ पे CMD में, it will ask for your email ID and your password, enter कर देना, so it will log in into your account, okay. यही मंगेगा वो, कहाँ एक स्टेप पे आके तुमसे मंगेगा वो कोड लॉग इन करने के लिए, वो कौन से स्टेप पे मुझे याद नहीं है, because I have already logged in, so I didn't remember. But it will ask you. It's a very easy. You will do it. If कहाँ पे stuck हो गए तो मुझे बोल देना. Okay. So now just I have cloned it. See, मैं यहाँ पे मेरा वो डेमो वाला आ गया और वहाँ पे Redmi भी आ गया. Okay. Now what I will do, I will go into my demo folder. Learn to use CMD. ठीक है, simple है, CD demo. So my current directory is now demo. I'm in the demo folder now. Okay. I will create one of the file in my demo only. मैं यहाँ से बना लेता हूँ, डेमो में जाता हूँ, new file, I will just name it index.html for an example. I will close this, I will use here HTML, okay.
मैंने एक फाइल बना दी है यहाँ पे, बस फॉर अ टेम्पररी बेसिस बनाई है. आई एम गोना डिलीट इट सून. ओके, नाउ आई वांट टू शो यू फ्यू थिंग्स. मैंने क्लोन कर लिया, आई एम इन दैट फोल्डर. नाउ आई वांट टू चेक आई वांट विच ब्रांच, मैं कौन से ब्रांच पे हूँ मैं वो देखना चाहता हूँ. तो द कमांड विल बी, जस्ट अ सेकंड, guys, it is visible, right? सबको दिख रहा है ना क्लियर कट? Yes. हाँ. Yeah. ओके, सो मेरी कमांड क्या रहेगी? अब मुझे ब्रांच चेक करना है, गेट ब्रांच. इट विल शो मी, सी इट्स शोइंग मी आई एम ऑन द dev branch. So Shreya, did you got it why I was saying dev branch? Because Okay. now Now I everyone got will it. code and push it into the dev branch only. उसे वो ब्रांच का ध्यान नहीं रखना पड़ेगा, मेन पे जा रहा है Correct. कि किस पे जा रहा है, तो dev पे ही जाएगा ऑलवेज. ठीक है, Clear. so git branch, so from git branch you will know कौन से branch पे हो. This is the first thing. I'm going to delete this file now. Okay, yeah, so I don't have, मैं जो पूरे पुराने स्टेट में था वही आ गया मैं git branch. Now I want to create a new branch. How will I create? And that also from the dev branch I need to create another branch. Got it? dev branch से मुझे एक नया branch बनाना है. What I will do, git checkout dash b, I will say it feature 1. ठीक है, and it will be dev. I hope command सही लिखे ना. Yeah, so I created a new branch, that also from dev branch. Git checkout dash b for branch, then the branch name, from which branch I want, from the dev branch. So now I have created a new branch feature 1 and I have been switched to feature 1. If I check it from git branch, see it will show me that I am on the feature branch. Clear everyone? कोई doubt है यहाँ तक के? No doubt. Okay, so this is the one thing. Now I'm in the feature 1 branch. What I will do, I will go in my demo folder, I will create one of the file index.html for an example. I will go, I will write the code, I wrote the code. ठीक है, now what I need to do, मुझे इसको push करना है. What is the process of push? ध्यान से देखना, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा है, बहुत easy है, बाद में तुम ऐसे हो जाओगे तुमको चुटकियों में याद रहेगा ये सब कुछ. First I need to add everything that, ये मेरा सब कुछ पुश होना चाहिए. तो git add dot means जितनी भी फाइल्स है ना सब कुछ ऐड कर दे उसमें, हम ये बोलते हैं git add this. ऐड हो गया, then I need to commit it, commit dash m, and I need to pass a message. Okay, this is a good passing a message is a very difficult task. Okay, even a good developer find it difficult what to give a good message here. So what I am doing here, I am just क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, एक फीचर ऐड किया मैंने. basically the message should be a verb. Okay, message should be a verb. कोई तो भी एक्शन जो तुमने की है ना वो होना चाहिए वहाँ पे मैसेज. तो I will write here added feature 1 for an example. Okay, अगर कोई ई कॉमर्स वेबसाइट कर रहा है, उसने प्रोडक्ट लिस्टिंग का क्या है तो वो क्या लिखेगा, एडेड प्रोडक्ट लिस्टिंग, इस वे में लिखेगा. इट शुड बी अ वर्ब. ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग. राइटिंग अ गुड कमिट मैसेज इज अ डिफिकल्ट टास्क. गिट कमिट कर दिया मैंने, ठीक है. नाउ आई नीड टू पुश इट. गिट या गिट पुश ओरिजिन, गिट पुश ओरिजिन, देन ब्रांच का नाम आएगा यहाँ पे, ठीक है, बिकॉज मुझे वो ब्रांच पे पुश करना है. गेट पुश ओरिजिन feature 1, enter. It will take a while. It is pushed to feature 1 branch. Now let's go to the website. See, यहाँ पे अपने अपने आप अपडेट हो चुका है कि feature 1 branch is been created. वो मुझे बोल रहा है कंपेयर करो और pull request. Okay, 10 minutes. Yeah, in 10 minutes we will finish. Not an issue. So I have click on this जो वहाँ पे आया था, sorry, वो जो आया था वहाँ पे कंपेयर करने के लिए I have been here. Now I am creating a pull request. जो मैं बोल रहा था raise a PR. This is called a raise a PR. So I have wrote here, यहाँ पे description कुछ भी ऐड कर देना जो ऐड करना है. It should be a descriptive one. मैं यहाँ पे normal लिख रहा हूँ, added feature for demo. Okay, and I will create pull request. So this is my pull request. Okay, so this is the link that you need to share with your team. Okay, जो ये टीम ये लिंक पे जाएंगे, फाइल चेंज पे क्लिक करेंगे वो लोग. ओके,
and they will see what changes you have made here. Okay, and if they want to give you review, example मुझे यहाँ पे review देना है, I will start my review, I will like looks good, जी एग्जाम्पल पे दे रहा हूँ मैं, ठीक है, एग्जाम्पल ये मैंने स्टार्ट रिव्यू ऐसे किया, यहाँ पे क्लिक कर दिया, ओके मुझे बाकी सब सही दिख रहा है, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा फिनिश योर रिव्यू, कुछ कमेंट देना है तो दे दूंगा, अप्रूव करना है अप्रूव, ओके ये मेरा खुद का रिक्वेस्ट है ना, इसलिए मैं अप्रूव नहीं कर सकता, बट इफ आई शेयर दिस लिंक विद यू गाइस ना, आई विल शेयर इन द चैट. Okay, I have shared in the chat. Okay. So from pull request, basically, like if we are able to approve, then or it will directly go to them. No, 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 no. I will show it everything. Then आएंगे वो okay. बीच में भी आएंगे, रुको वेट करो. Okay, so you guys need to approve. कोई भी एक जन वो लिंक खोल के अप्रूव कर दो वहां से जाके. Write something here. Write something here and click on approve. I'm waiting for your approval. Anyone? या किसी ने? Yeah, just a second. Yeah. See, Arun, you left a comment. You didn't approve it. What I told you guys, go here. You I can. have approved. You have clicked here and selected the approve button. Yes. Okay, it's not showing me. Yeah, you have approved. Yeah, you have approved. Yeah. See, approve करने के बाद ना रिव्यूअर्स के अंदर उसका नाम आता है. ये चीज ध्यान रखना, ठीक है. रिव्यूअर्स में जब नाम आता है ना वो होता है अप्रूवर, ठीक है. इसने अप्रूव कर दिया तो और उनका आ गया यहाँ पे, देखो मुझे आ गया, इट लुक्स गुड. सो इन दिस वे व्हाट वी डू, हम हमारे टीम के साथ ये लिंक शेयर करते हैं, वो जाते हैं यहाँ पे फाइल चेंज उनको पूरा दिख जाता है, क्या क्या चेंजेस हुए हैं, कमेंट्स दिख जाती है. अब मुझे किसी ने वहाँ पे रिव्यू चेंज में जाके रिक्वेस्ट चेंजेस किया होता तो मुझे यहाँ दिख जाता. सो आई नीड टू मेक दोस चेंजेस, अगेन पुश द कोड हियर, देन अगेन गेट इट रिव्यूड, और जैसे ही रिव्यू आएगा आई विल क्लिक ऑन मर्ज द पुल रिक्वेस्ट. सी हियर Shreya, you were asking, it will get automatically add or Correct. not. That's You need to click on this confirm merge and see your branch is merged. So now when we go so in the once code, it's approved, then we will get that option, correct? no, it gets automatic. वो by default आता ही है वहाँ पे. But it's a standard practice to get a review and then merge. Directly merge हम कभी नहीं करते. Okay, okay. Okay, so that अब Dev वो अप्रूवल ना मिनिमम कितने लोग चाहिए? depends on your team. अभी वो मैं हमारे खुद के जनरल रूल्स होते हैं हमारे, कि मुझे 2 चाहिए, मुझे 3 चाहिए Okay. हमारे प्रोजेक्ट. ओके, अगर कोई नहीं अभी इधर अप्रूव नहीं कैसे? करता ना तो भी मुझे वो मर्ज का ऑप्शन हम्म, आता, सो आई कुड हैव मर्ज इट डायरेक्टली. ओके, गॉट इट अरुण? हाँ यस बट हाँ. सो देखो ये मर्ज किया मैंने वहां से, देखो मेरा कोड यहाँ पे आ गया है डेव ब्रांच के अंदर. आई गॉट माय index.html. गॉट इट? सो नाउ अब I वापस mean से the means. व्हाट? So it got added. या इट गॉट एडेड इन द dev branch. Got it. So now see again, अभी हम यहाँ पे आते हैं. Okay, I want to show you something from here. Now here I was on git branch. See, I will check my branch. I was on feature 1. Now I want to go again to the dev branch because अब मैं नया feature add करने वाला हूँ. So what I will do, git branch dev डालूंगा यहाँ. Okay, dev branch name git switch आएगा, sorry, git switch dev. I will get switch to my dev branch again. What I will do, क्या बोला था मैंने, एक important step, कभी भी मुझे नया branch बनाना है तो git pull. Yeah, pull Guys, and then make up. ये मिस्टेक मत करना. ओके, इफ यू फॉरगेट टू git pull and you create a new branch and added your feature ना, इतना मेसअप हो जाएगा ना, जो तुमने कोड किया ना तुम्हारा उड़ जाएगा, तुम्हारा अगर ध्यान नहीं रहा. एंड यू विल बी लाइक, अरे मैंने किया तो था, कहाँ गया कोड? गया कोड, कोड उड़ जाएगा. याद रख लेना मेरी बात. इसलिए गिट पुल करना, मेन ब्रांच पे आके गिट पुल करना, एंड देन नाउ क्रिएट अगेन न्यू ब्रांच. गिट क्या कैसा है, गिट चेकआउट डैश बी ब्रांच नेम. फॉर एन एग्जांपल ब्रांच नेम ही लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे. देव से मुझे ब्रांच बनानी है. आई विल एंटर एंड आई विल स्टार्ट माय कोडिंग अगेन. एंड अगेन आई विल फॉलो द सेम प्रैक्टिस. ऐड करो, कमिट करो, पुश करो, वहां पे जाके पीआर रेज करो, पीआर से अप्रूव करो, मर्ज करो, कंटिन्यू अप द प्रोसेस. यही प्रोसेस चलती रहेगी. ओके, फिर वो बाद में क्या करते हैं हम, अब देव ब्रांच से मेन में आना है. अगेन गो इन द सेटिंग, मेक यू मेन ब्रांच एज योर डिफॉल्ट ब्रांच. फिर वापस से पुल रिक्वेस्ट आ जाएगी वहां पे. अगेन रेज द पुल रिक्वेस्ट एंड योर वर्क इज डन. गॉट इट एवरीवन?
Yep, got Yes. it. सी इट्स लग रहा होगा सबको थोड़ा डिफिकल्ट है, ये इजी है। जब अभी डेली आदत हो जाएगी ना चीज पे, देन सब कुछ याद होगा तुमको। ऑन योर टंग दोस कमांड्स विल बी एकदम इजीली। So yeah, that was for today's session. Git. So now the work for you everyone is that जो तुमने POC बनाया है सेम स्टेप फॉलो करो, ठीक है। देव ब्रांच, मेन ब्रांच, देव ब्रांच, एक बनाओ फॉर्म की ब्रांच, उसमें तुम्हारा कोड पुश करो फॉर्म पे, गेट इट, खुद ही रिव्यू करो, खुद ही कमेंट मत देना, डायरेक्टली अप्रूव कर दो, खुद अप्रूव भी नहीं कर सकते हो, मर्ज करो वहां से देव ब्रांच। दिस इज योर वर्क, मर्ज इट इन द देव ब्रांच एंड शेयर द कोड विद मी। ओके, मतलब वो देव ब्रांच ना हर एक को अलग अलग रहेगा। हर एक को मतलब हर प्रोजेक्ट में अलग देव ब्रांच रहेगा ना, हर एक नहीं रेपो नहीं में। नहीं, मतलब अगर हमारी टीम है पूरी और उधर हर नो हर पर्सन को अलग अलग नो देव नो नो ब्रांच नो नो नो, देव ब्रांच विल बी द सेंट्रलाइज्ड ब्रांच। उससे जो तुम्हारे ब्रांचेस Okay. बनेंगे वो तुम्हारे पर्सनल पर्सनल ब्रांच रहेंगे। ओके, Hmm. see, this is how everyone does the work in the industry, let it be a small startup or let it be a Microsoft or Google, सब यही प्रोसेस करते हैं everyone। तो ये आना चाहिए, कमिट के मैसेज सही तरीके से लिखना है तुम्हें, ठीक है। तो जो पीओसी तुमने बनाया है मेन ब्रांच देव ब्रांच से एक फॉर्म की ब्रांच बनाओ, उसमें वो कोड पुश करो, वहां से मर्ज करके देव पे लाओ। ओके, दिस इज योर वर्क एंड शेयर द लिंक इन द ग्रुप इटसेल्फ। यू माइट बी थिंकिंग क्यों कर रहे हैं, हम खुद के लिए कर रहे हैं। ये इसलिए बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिस अभी से डालोगे तो तुम्हें ये सब पता होगा, यू विल बी a person who will stand out. That's why this mentorship program is made. Okay. And the second thing is, yeah, we will connect again on Sunday, 1-to-1। अगर जिसे भी इंटरेस्ट होगा 1-to-1 कनेक्ट हो जाएंगे। एंड आई होप वी विल बी टेकिंग 10 minutes और 20 minutes का सेशन ऑन संडे, बिकॉज HTML खत्म हो गया, सो वी विल बी स्टार्टिंग विद CSS नाउ। ओके, बीइंग अ CSS डेवलपर इज अ डिफिकल्ट थिंग, बट अगर एक बार CSS समझ में आ गया ना, ऐसे तुम्हारे चुटकियों में तुम फटाफट बोल दोगे कि मुझे क्या यूज करना है, कैसे बनाना है और मेरा कैसे डिस्प्ले होने वाला। ओके, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है CSS में बहुत ज्यादा, जो कोई फॉलो नहीं करता है, हम वो सब सीखेंगे, हम सब अच्छे से करेंगे। ओके, या दैट्स इट। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, एनीथिंग यू वांट टू से? जस्ट 1 minute is remaining. For that. No, Manvi, anything you Thank have you. to say? Yeah, like I had used CSS in that. So should I just edit that, Yeah, remove edit that it, thing and remove it, because at the end you need to remove it again। जब मैं स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस बताऊंगा तो रिमूव करना है, ठीक है। okay. Okay, so Alright. let's end the meeting. Thank you everyone, thanks for joining। Thank If you. you have any doubt, put Thank in you the so much. chat group में डाल देना, मैं recording थोड़ी देर बाद share कर दूँ। Okay, okay then, bye everyone, Thank you. thank you, Yeah, bye bye। thank you.